हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन चैप्टर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। हैव यू एवर प्लेड चेस? What would happen if the black knight suddenly started moving straight rather than 2.5 squares? Or what would happen if in a game of cricket there were no umpires? In any sport we need to follow certain rules, change the rules, and the outcome of the game would be very different. Similarly, a game needs an impartial umpire whose decision is accepted by all the players. The rules and the umpire have to be agreed upon before we begin to play a game. What is true of a game is also true of elections. There are different rules or systems or conducting elections. The outcome of the election depends on the rules we have adopted. We need some machinery to conduct the elections in an impartial manner, since these two decisions need to be taken before the game of electoral politics can begin. These cannot be left to any government. That is why these basic decisions about elections are written down in the constitution of a democratic country. In this chapter, we shall study the constitutional provisions regarding elections and representation. We shall focus on the importance of the method of election chosen in our constitution and the implications of the constitutional provision regarding impartial machinery for conducting election. We shall also look at some suggestion for amending the constitutional provisions in this respect. After reading this chapter, you would understand different methods of election, the characteristics of the system of election adopted in our country, the importance of the provisions for free and fair elections, and the debate on electoral reforms, elections and democracy, यानी कि चुनाव और लोकतंत्र. Let us begin by asking ourselves two simple questions about elections and democracy. Can we have democracy without holding elections? Can we hold election without having democracy? Let us have a discussion in the classroom on both these questions by using examples from whatever we have learned so far in the previous classes. The first question reminds us of the necessity of representation in a large democracy. कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते और लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं, इसीलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है. हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनाव पर चला जाता है. आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं. हम हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं. प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं. प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं. कई लोगों की स्थानीय सरकारें, खास तौर से ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम ही उदाहरण हैं. लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता. इसीलिए जनता के शासन का मतलब सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से है. ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं. इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं. अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका है. वो इन नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते. नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं. जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाएं, उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. दूसरा क्वेश्चन हमें इस बात का याद दिलाता है कि
सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासन खुद को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। इसके लिए वो चुनाव को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा ना हो। क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनाव के एग्जाम्पल देख सकते हैं? आपकी राय में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? किसी देश में चुनाव को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? इसी बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनाव के लिए मूलभूत नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ देता है। ये मूलभूत नियम हमें ये बताते हैं कि Who is eligible to vote, यानी कौन मत देने के लिए योग्य है। Who is eligible to contest, who is to supervise elections, how do the voters choose their representatives, how are the votes to be counted and representatives elected। यहाँ फिर एक्टिविटी दी गई है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। हमने यहाँ चुनाव की कई विधियों और व्यवस्थाओं को पढ़ा। आपको आश्चर्य भी हुआ होगा कि ये सब क्या है। आपने चुनाव के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले कई तरीकों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन चुनाव के कई तरीके क्या हैं? चुनाव संचालन करने की एक व्यवस्था है। इसके लिए ऑथोराइटीज यानी प्राधिकार और नियम भी हैं जो बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या चुनाव व्यवस्था का यही मतलब है? आपको आश्चर्य हो सकता है क्योंकि संविधान में ये लिखने की ज़रूरत पड़ी कि मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। क्या वो खुद ही स्पष्ट नहीं? लोग जाते हैं और वोट देते हैं, जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलता है वो चुना जाता है। पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होता है। हमें इसके बारे में क्या सोचना चाहिए? हमें इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन उतना इजी नहीं है जितना हमें लगता है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में ही इतना लीन है कि हमें लगता है कि कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और इसकी इच्छा ये ही तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। उनकी पसंद की गणना की भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल सकता है कि जीत किसकी होगी। कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें बड़े लोगों को लाभ पहुंचता है, कुछ नियम से छोटे खिलाड़ियों या दलों को मदद मिलती है और कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में होते हैं जो अल्पसंख्यकों को संरक्षण देते हैं। आइए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, उसके द्वारा समझे। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। लुक एट द न्यूज़पेपर क्लिपिंग। पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत। ये भारतीय लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में है जो 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक थी। लोकसभा चुनाव में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। इस चुनाव से क्या पता चलता है? कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली। इसका अर्थ ये है कि सभी लोग 5 भारतीय नागरिकों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया। वास्तव में नहीं। यहाँ पर नीचे यहाँ एक टेबल दिखाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिला। इसका मतलब हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने वोट दिया उसमें केवल 48% लोग ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली। और भी कई दल यहाँ पर हैं, जैसे कि बीजेपी, जनता लोक दल, सीपीआई। उस टाइम की बात है। भाजपा को 7.4% वोट मिला, लेकिन 1% से कम सीटें मिली। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। इस व्यवस्था में पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है।
सभी निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलता है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को कई सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाता है उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता। विजयी प्रत्याशी के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी कई प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाते हैं वही विजयी होते हैं। इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। आइए अपने एग्जाम्पल की ओर फिर से लौटें। कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज़्यादा सीटें मिली इसीलिए क्योंकि कई निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उसके प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से कम वोट मिले। सभी हारने वाले प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों या दलों को कोई सीट नहीं मिलती। मान लीजिए कि किसी पार्टी को कई निर्वाचन क्षेत्र में 25% या उससे भी कम वोट पाकर कोई दल सभी सीटें जीत सकता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आईएस की तुलना इजराइल में होने वाले चुनाव से करें जहां एक बिल्कुल अलग चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। इजराइल में मतगणना के बाद सभी पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती है जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। सभी पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है। जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। कुछ देशों जैसे कि इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और सभी पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात सीटें दे दी जाती है। और दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है जहां की पूरे देशों को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। सभी पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करते हैं जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं ना कि उनके प्रत्याशियों को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती हैं और किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए सीमित रूप में अपनाया हुआ है। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और कई विधान परिषद के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लिस्ट पार्टी के कैसे यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना की गई है। जैसे कि पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। हाउ डज PR वर्क इन राज्यसभा इलेक्शंस? यहाँ पर बताया गया है कि राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली किस तरह से निकाली जाती है। तो टोटल वोट्स पोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड और उसमें ऐड कर देंगे 1 और फिर उसके बाद से आपका आंसर मिल जाएगा। वाई डिड इंडिया अडॉप्ट द FPTP सिस्टम?
इस क्वेश्चन का आंसर का अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं है। अगर आपने यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है सही से, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, जो किसी छोटे देश में तो लागू हो सकती है, पर उपमहाद्वीप जैसे कि विशाल देश भारत में नहीं। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है। उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना बहुत सरल है। इसके अलावा चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकता है और किसी दल को भी। वो चाहे तो इन दोनों में मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। ये प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं बल्कि उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। और कई चुनावी व्यवस्था में खास तौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता, लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम संसदीय प्रणाली की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इस व्यवस्था की मांग है कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत मिले। आप देखेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होगी, क्योंकि मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें बढ़ जाएंगी। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में अमूमन बड़े दलों और गठबंधनों का बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। आप फिर से यहाँ पर एक टेबल देख सकते हैं जहाँ पर उनके टोटल वोट्स, नंबर ऑफ सीट्स और सीट्स इन पीआर बताए गए हैं। ये सीटें उन्हें मिले मतों के अनुपात से अधिक होती है। ये प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। अंत में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में कई सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सभी समुदाय को अपनी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने को प्रेरित करेगी। संभवतः ये बात भी हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में रही होगी। संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है। संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान की कार्यप्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है। रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमने पहले पढ़ा कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है, उसे ही चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है। ये भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम ये होगा कि दबंग सामाजिक समूह और जातियाँ हर जगह जीत जाएंगी और दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमारा संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी ये है कि वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके।
अगर हम लोकतंत्र को एक ज़मीनी हकीकत बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मतदाताओं की आकांक्षाओं चुनाव परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सके। Article 324(1) The superintendent's direction and control of the preparation of the electoral rolls for and the conduct of all election to Parliament and to the legislature of every state and of elections to the offices of President and Vice President held under the constitutions shall be vested in a commission referred to in this constitution as the Election Commission. इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। उसमें कई कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजना पड़ता है। वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन पिछले 66 ईयर्स से और 72 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। चुनाव सुधारों के सुझाव निर्वाचन आयोग, कई राजनीतिक दलों, स्वतंत्र समूहों और कई विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करनी चाहिए। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेगी जिस अनुपात में वोट मिलेंगे। संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष निधि से चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए और उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी और लोकतंत्र बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए।